Greetings, dear children. Today we are going to read the lesson If the Well Goes Dry, written by Albert Gore. He is commonly known as Al Gore. He was born in 1948 and he was the 45th Vice President of the United States of America, serving in that capacity from 1993 to 2001. He was one of the first politicians to grasp the seriousness of climate change. तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे काफ़ी कुछ कि अगर मैंने अल्बर्ट गोर का नाम लिया है इस लेसन के बारे में, इफ़ द वेल गोज़ ड्राई, तो इफ़ द वेल गोज़ ड्राई का ये मतलब नहीं है कि हम किसी सूखे कुएं या पानी के सूखने की बात करें, बट अगर हम दूसरी तरह से देखें तो हम एग्जैक्टली पानी की ही बात, मेनली फ्रेश वाटर की. एक्चुअली what we are going to talk about the water, the climatic change, the big change which is affecting our lives, especially the human beings who have changed the whole world scenario, the world and the whole atmosphere, the environment and each and everything. Now what we are going to talk about, let's see. All major religions of the world consider human body to be made up of water and earth. Earth's major component is water. That is true of human beings too. Without water, any life form that we know, including human beings, cannot exist. And to survive, we need fresh water. In this excerpt, the author identifies 5 major threats to the global water system: redistribution of freshwater supply, the rise of sea levels resulting in the loss of low-lying coastal areas, widespread deforestation, contamination of water resources, and the pressure of rapid population growth. Now, you must have got the idea what we are going to talk about exactly. Okay, let's discuss it in detail, and first of all, let's start reading the lesson and let's read the lesson. What writer wants to tell exactly, and on what factor and what exactly is the important thing which we must all follow, and on what he is going to throw light upon. Okay, so let's see. So I'm going to read this lesson. Okay, human beings are made up mostly of water in roughly the same percentage as water is to the surface of the earth. Our tissues and membranes, our brains and hearts, our sweat and tears all reflect the same recipe for life, in which efficient use is made of those ingredients available on the surface of the earth. We are 23% carbon, 2.6% nitrogen, 1.4% calcium, 1.1% phosphorus, with tiny amounts of roughly 3 dozen other elements. But above all, we are oxygen 61% and hydrogen 10%, fused together in the unique molecular combination known as water, which makes up 71% of the human body. बहुत ही हैरानी वाली बात है ना. आप लोगों को भी ये सुन के और जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी का है, जो इसमें अभी बताया गया है कि हमारे अंदर इतना परसेंट नाइट्रोजन होता है, इतना परसेंट हाइड्रोजन, इतना परसेंट पानी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O you know is water. Okay, so whatever percentage we maintain about each and everything, the same percentage is of the earth. The earth is also made up of the same percentage, same things, same molecules, same to same. That's why what we are called, इसीलिए तो हमें कहा गया है कि हम मिट्टी के बने हुए है ना. हम बहुत बहुत हज़ारों सालों से एक बात सुनते आ रहे हैं कि हम इस पंच तत्व जो है हम उसके बने हुए हैं, और हम इसी मिट्टी के बने हुए हैं, और इसी मिट्टी में ही एंड में विलीन हो जाने वाले हैं, यानी कि इसी में मिल जाने वाले हैं. तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है. आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अर्थ पे भी जैसे कहा जाता है कि पूरी अर्थ पर 25% खाली लैंड है और 75% पानी है. उसके बावजूद भी पानी की कमी हमेशा रहती है, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द वाटर यानी ऑलमोस्ट 72% पानी जो है वो सेलाइन वाटर है, यानी कि नमकीन पानी, खारा पानी है, जो हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए, पीने के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये आप लोग भी जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर होता है, यानी नदियों में, तालाबों में, ये जो पानी है ना, ये पानी या अंडरग्राउंड जो हम लोग आजकल बोरिंग वगैरह करते हैं, जिसे ये हैंडपम्प वगैरह से जो खींचते हैं, वो भले ही थोड़ा सा खारा होता है बाकी पानी से, जो हमारा, जो हम लोग नदियों का पानी जो इस्तेमाल, जो घरों में अब जो पहुंचाया जा रहा है ना नलों से, तो वो पानी जो है, ये वाला भी बोरिंग वाला जो हम कहते हैं, ये भी कोई खारा पानी नहीं है, पर ये भी फ्रेश वाटर में ही आता है। लेकिन धीरे 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 हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ग्राउंड वाटर, जो अर्थ में जो वाटर जो हम लोग जो बोरिंग वगैरह करते हैं, ये सब जो है, ये धीरे धीरे इसका लेवल काफ़ी कम होता जा रहा है। तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज, एंड व्हाट इज द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, व्हाट मस्ट बी द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, इसी पर लाइट थ्रो की है उन्होंने, अल्बर्ट गोर ने, और उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इस लेसन में समझाया। उन्होंने क्या कहा है आगे, सो व्हेन एनवायरमेंटलिस्ट assert that we are after all part of the earth, it is no mere rhetorical flourish. Our blood even contains roughly the same percentage of salt as the ocean where the first life forms evolved. ऐसा कहा जाता है कि जो लाइफ जो शुरू हुई, सबसे पहले जीवन जहाँ से शुरू हुआ वो था ओशन में शुरू हुई है। हम लोग सोचते हैं कि हम इंसान सबसे पहले इस दुनिया में आए थे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दे इवेंचुअली ब्रॉट ऑन टू द लैंड अ सेल्फ कंटेन्ड स्टोर ऑफ द सी वाटर टू विच वी आर स्टिल कनेक्टेड केमिकली एंड बायोलॉजिकली. Little wonder then that water carries such great spiritual significance in most religions, from the water of Christian baptism to Hinduism's sacred water of life. और ये बात हम सभी को मालूम है, अच्छी तरह से जानते हैं हम, कि हर धर्म में, चाहे वो हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी, चाहे वो इस्लाम है, कोई भी धर्म है, सब में पानी का यानी वाटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बिना कोई भी, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आज अगर हम लोग मंदिरों में जाते हैं, अभिषेक करने भी जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो सबसे पहले कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले इस बात पे वो किया जाता है कि इवन भगवान को भी जल से नहला के पवित्र किया जाता है। यानी कि पानी की, जल की इतनी इम्पोर्टेंस है, और हम उसी को इतना ज़्यादा इग्नोर किए जा रहे हैं उस बात को। और इस इग्नोरेंस में हम क्या कर रहे हैं, वो जो ग्राउंड वाटर है उसके दुश्मन बने हुए हैं, वो हम धीरे 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 ख़त्म करते जा रहे हैं। कैसे? पॉल्यूशन से, दूसरी चीज़ों से, और उसके अलावा जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ बनता जा रहा है। We depend especially on fresh water, which is only 2.5% of the total amount of water on earth. Most of that is locked away as ice in Antarctica and to a lesser extent in Greenland, the North Polar ice cap and mountain glaciers. Groundwater makes up most of what remains, leaving less than 0.01% for all the lakes, creeks, streams, rivers and rainfalls. This still leaves more than enough water to meet all our needs, both now and in the foreseeable future, but it is distributed unevenly throughout the world. अच्छा, पानी तो जो है, जो कम ऑलरेडी है ही, उसके बाद इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग उसका कर रहे हैं। इसके अलावा और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम वो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हमने इतना अनइवन और इस तरह से कर रखा है कि सारा सिस्टम ही गड़बड़ा चुका है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है पानी के बारे में। और पहले तो कई बार ये कहा जाता था, और अब भी लोग ये कहते हैं कि अगला जो युद्ध होगा तो शायद पानी के पीछे ही होगा,
क्योंकि पानी की लगातार कमी होती जा रही है, उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग होने से या सी लेवल्स राइज होने से, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स रीड. This still leaves more than enough water to meet all our needs both now and in the foreseeable future, but it is distributed unevenly throughout the world, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था. As a result, human civilization has been restricted to more or less the same geographic pattern that conforms to the distribution of fresh water around the planet. Any lasting alteration of that pattern would therefore pose a strategic threat to global civilization as we have known it. यानी कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और सारी सब जो चीज़ें हम कर रहे हैं और ये जो हम लोग जो एटमॉस्फेयर को नुकसान, एक्चुअली क्या है कि हर जगह का जो पूरी जो वर्ल्ड की जो जोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है. कहीं रेगिस्तान है, कहीं कुछ. अच्छा, उस हिसाब से और जहाँ ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर बसाहट ज़्यादा है. ये बात हम लोग शुरू से बहुत हज़ारों सालों से देखते आ रहे हैं. जो हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशंस भी जो थी, इंडस वगैरह, जो भी सिविलाइजेशंस पूरे वर्ल्ड में, वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि नदियाँ या पानी की अवेलेबिलिटी थी या इस तरह की जो सुविधाएं थी, तो वहाँ पर ज़्यादा डेवलप हुई हैं. तो हम लोग उस पैटर्न को, उसको किसी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से उसको चैलेंज करने में, उसको बिगाड़ने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी है. Unfortunately, the dramatic change in our relationship to the earth since the industrial revolution, especially in this century, is now causing profound damage to the global water system. The health of our planet depends on our maintaining a complex balance of interrelated systems. So it's not surprising that our alteration of the global atmosphere is changing the way water is transferred from the oceans to the land and back again. Warmer temperatures speed up both evaporation and precipitation, accelerating the entire cycle. In addition, the increased warmth also increases the amount of water vapor in the atmosphere, which magnifies the greenhouse effect and speeds the process still further. अब हमारे साथ में जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई है, आज से करीब 200-300 साल से लगातार, बल्कि और पहले से हम लोगों ने अर्थ की जो हालत है, जो सारा जो ग्लोबल सारा सब जो सिस्टम है, उसको हमने इतना ख़राब करके रखा हुआ है. हमने बिल्कुल उसको बिगाड़ के रख दिया है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से तो हमने एटमॉस्फेयर के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, और हम खुद ही दुखी होते रहते हैं कि अरे आजकल तो पॉल्यूशन बढ़ गया और ये वो सब. लेकिन उसके ज़िम्मेदार भी तो हम हैं, क्योंकि जब से इंडस्ट्रीज़ बनी है तब से क्या हो रहा है कि जो भी वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी सीधे नदियों में जाती हैं. ठीक है. उसके अलावा पॉल्यूशन तो हम लोग जो स्मोक्स और उसके थ्रू नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब तो बढ़ ही गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी सड़कों पे और पटरियों पे काफ़ी ट्रेन्स वगैरह, ये सारे सब जो हम लोग जो स्पेशली जो रोड ट्रांसपोर्ट है, इसने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करी हुई है. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो इतनी बड़ी जो देन जो हमें जो मिली है, वो डेवलपमेंट के रूप में इतना सब कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी चीज़ तो हुई है, और वो ये है कि हम लोग इस पॉल्यूटेड वाटर के साथ में, इस पॉल्यूटेड उस सारे माहौल में उस तरह से रहने के लिए मजबूर हो गए, और इसी वजह से बीमार भी रहने लगे और दूसरी सारी सब प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ होने लगी ना. क्योंकि क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पोलर रीजन्स को ट्रॉपिक से ज़्यादा, उसकी वजह से फास्टर यानी कि ज़्यादा तेज़ी से हीट अप होते हैं. इट मे ऑल्सो बी चेंजिंग द वे द अर्थ अचीव्स अ बैलेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड. अब जो ये बैलेंस एक चल रहा था ना हॉट एंड कोल्ड के बीच में, जो अर्थ रिसीव करती थी, उसको भी हमने कैसे अफेक्ट किया है. द ओशन हेल्प्स टू मेंटेन द ग्लोबल इक्विलिब्रियम बाय कॉन्स्टेंटली पुशिंग टूवर्ड a more even distribution
ऑफ टेम्परेचर इन अ डिस्टिंक्टिव एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न। क्या होता है कि जो ओशंस जो हैं वो पूरे सारे वाटर साइकिल को, सारे सब पूरे इसको एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट करते हैं और उसको एक जो एक ये जो बैलेंस जो चल रहा होता है ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं उस ग्लोबल इक्विलिब्रियम को। कौन? ओशंस। ठीक है। द ओशन ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इन ह्यूज करेंट्स नियर द सरफेस सच एज द गल्फ स्ट्रीम। अच्छा, जो ओशंस क्या करते हैं कि वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, किस में? बहुत ज़्यादा करेंट्स के फॉर्म में, बहुत ह्यूज करेंट्स के फॉर्म में, गल्फ स्ट्रीम की तरह, जैसे है ना, सरफेसेस की तरफ फेंकते हैं। एज अ वार्म ओशन वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स मूव्स नॉर्थवर्ड। अब ये जो वार्म ओशन वाटर जो वार्म हो चुका है, ओके, क्योंकि वो हीटअप हुआ है, अभी मैंने आपको बताया किस तरह से। तो जब वो पानी जो है, वो जो वार्म ओशन वाटर है, ये जब ट्रॉपिक्स की तरफ नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ घूम जाता है तो कुछ पानी इसमें से इवॉपरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन के रास्ते में चला जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है। नाउ व्हेन इट हिट्स द कोल्ड पोलर विंड्स बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। अब ये जो है, ये जो वार्म ओशन वाटर की बात हम करें, ह्यूज करेंट्स, जब ये कोल्ड पोलर विंड्स को ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में जो चलती हैं उसको जाके टच करता है, उनको जाके उनसे टकराता है, इवोपरेशन एक्सेलरेट होता है, यानी उसकी जो वो सारी जो प्रोसेस है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है एक तरह से। यहाँ हमें ये कहना चाहिए। ठीक है। लीविंग बिहाइंड मच सॉल्टियर सी वाटर। और पीछे क्या रह जाता है? सी वाटर, बहुत सारा, काफ़ी मात्रा में, विच बिकम्स डेंसर एंड हैवियर। अब सी वाटर इतना सारा रह गया और वो भी खारा पानी, आपको पता है सॉल्टी वाटर होता है, तो वो डेंस यानी कि घना घना हो जाता है, हैवी हो जाता है, वॉल्यूमिनस हो जाता है। दिस रैपिडली कूलिंग वाटर सिंक्स टू द बॉटम एट द रेट ऑफ 5 बिलियन गैलन्स अ सेकेंड। अब ये वाटर जैसे जैसे कूल होता जाता है, ये बहुत तेज़ी से कूल होता है। अब ये जो ऊपर भाप बन के उड़ गया था, ये वापस से बॉटम की तरफ यानी अर्थ की तरफ किस रेट, किस स्पीड से आता है और किस यूनिट में? 5 बिलियन गैलन्स अ सेकेंड। एक सेकेंड में 5 बिलियन गैलन्स, बहुत बहुत बड़ी अमाउंट होती है, उसमें पानी बारिश के रूप में गिरता है, फॉर्मिंग अ डीप करंट जस्ट एज पावरफुल एज द गल्फ स्ट्रीम, if not as well known, which flows south underneath the Gulf Stream near the ocean floor. In the process, it transfers cold from the poles back toward the equator. ये सारा सब जो प्रोसेस चल रहा होता है, अब क्या होता है कि इफ़ नॉट एज वेल नोन, ये जो है, ये पानी जो है, ये सारा ये साउथ की तरफ अंडरनीथ द गल्फ स्ट्रीम की तरफ चलता है, नियर द ओशन फ्लोर, यानी कि ओशन फ्लोर यानी कि ओशन की ही बात हो रही है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है, ये सारा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, पहले पानी वार्म होता है, फिर इवॉपरेट होता है, फिर बारिश के रूप में जो गिरता है, इट ट्रांसफर्स कोल्ड फ्रॉम द पोल्स बैक टूवर्ड्स द इक्वेटर। ये क्या करता है? पोल्स की तरफ खूब सारा जो कोल्ड होता है, यानी कि जो ठंडक जो है, उसको बैक टूवर्ड्स इक्वेटर की तरफ, पोल्स की तरफ से लेके और इक्वेटर की तरफ वापस भेजता है। आगे क्या होता है और किस तरह से ये सारी सब चीज़ें जो हैं वो एटमॉस्फेयर को सबको अफेक्ट करती हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, उसमें हम आगे का लेसन पढ़ेंगे।